Viewers, welcome back to English Only Zone. I'm Akanksha Sharma. Today I'm back with the topic of English grammar and the topic is pronouns. What is a pronoun? From the name itself, we can guess that it is related to noun. Noun से relate होने वाला word ही pronoun है. So let us read the definition. A pronoun is a word that is used in place of nouns. Noun की जगह use होने वाला word ही pronoun कहलाता है. For example, he, she, it, they, we, us, etc. He and she is used for a single person, he is used for male, and she is used for female. It is used for a thing or an animal. They is used for more than one person. For example, 2 or 3 people are standing away from us. For them, we will use they. We and us हमारे लिए यूज होता है, अपने लिए. Now, let us move on to the next topic, that is types of pronouns. There are 9 types of pronouns. So, from these 9 types of pronouns, few we will study today in this video, and the leftover pronouns we will study in the next video. Let us move on to the first type of pronoun, that is personal pronoun. Before understanding the definition of personal pronoun, let us read these statements given here. Nina completed her homework. Nina gave her notebook to her friend. Nina forgot to take her notebook back. इन सेंटेंसेस को पढ़ते हुए हमें थोड़ा सा अजीब लग रहा है. क्या अजीब लग रहा है? कि इसमें एक ही वर्ड को हमने बार बार रिपीट करा है. जो हमारी सब्जेक्ट है, जो हमारी नाउन है नीना, उसको हमने रिपीट किया है. तो अगर इन रिपीटेड नेम्स की जगह अगर हम इसकी जगह शी ऐड कर दें, तो our sentences would look better and they would feel better while speaking. Now let us read these sentences. Nina completed her homework. She gave her notebook to her friend and she forgot to take her notebook back. अब सिर्फ she ऐड कर देने से हमारे स्टेटमेंट्स थोड़े से बेटर लग रहे हैं. तो पर्सनल प्रोनाउंस भी इन्हीं का काम करते हैं. They make our statements look better. Now let us study the definition. Personal pronouns are those used to refer to a speaker or to the people or things that a speaker is referring to. Personal pronouns वो pronouns होते हैं जो एक speaker को refer कर रहे हैं. For example, right now I am the speaker. मैं बोल रही हूँ अभी वीडियो में, तो मैं speaker हूँ. अपने लिए मैं जो pronoun यूज़ करूँगी वो क्या होगी? I. जो मेरा noun है, जो मेरा name है, वो मेरी noun हो गई मेरे लिए. और उस नेम को अगर मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ और मैं उसकी जगह प्रोनाउन यूज़ कर रही हूँ, तो वो क्या हो जाएगी? आई. तो या तो स्पीकर को रेफ़र करने वाले वर्ड्स, या फिर स्पीकर अगर किसी और के लिए रेफ़र कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल, मैं आप लोगों के बारे में बोल रही हूँ, तो आई डोंट नो योर नेम, तो मुझे आपका नेम नहीं पता, लेकिन फिर भी मैं आपको रेफ़र कर रही हूँ, तो मैं आपके लिए क्या वर्ड यूज़ करूँगी? यू. तो पर्सनल प्रोनाउंस स्पीकर या फिर जो जिन लोगों को स्पीकर रेफर कर रहा है उनके लिए ये यूज होते हैं. पर्सनल प्रोनाउंस आर यूज टू रेफर नेम्स. अब हमें जब नेम्स नहीं पता होते तो हम उनकी जगह प्रोनाउंस भी यूज कर लेते हैं, और अगर पता होते भी हैं, लाइक इन द केस ऑफ नीना, द स्टेटमेंट्स वी रेड इन द प्रीवियस स्लाइड, तो वहाँ पर बार बार वो एक नेम रिपीट करने से जो लुक होता है स्टेटमेंट का वो खराब हो जाता है, तो उनकी जगह हम प्रोनाउंस यूज करते हैं. Now let us understand more about personal pronouns by understanding their types. So the first type of personal pronoun is first person. Second is second person and third is third person. So it means there are 3 types of personal pronoun: first person, second person and third person. So what is the first person? Or who is the first person? The speaker. The speaker is the first person. For example, अभी मैं बोल रही हूँ तो मैं first person हुई, speaker. सेकेंड पर्सन द लिसनर. आप लोग अभी मेरी वीडियो को सुन रहे हैं, तो आप लोग लिसनर्स हो गए. एंड थर्ड पर्सन इज समवन हु इज नॉट प्रेजेंट एट द मोमेंट वी आर टॉकिंग. फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी थर्ड पर्सन को रेफर कर रही हूँ. लेट्स टेक विराट कोहली. आई एम रेफरिंग टू विराट कोहली एंड ही इज नॉट प्रेजेंट एट द मोमेंट वी आर टॉकिंग हियर, तो ही इज द थर्ड पर्सन. नाउ लेट अस read which pronouns come under which person. For first person, I, me, we, us. यहाँ पर first person हो गए. Second person, you, your.
थर्ड पर्सन इज ही, शी, इट, दे, देम। अब फर्स्ट पर्सन, मैं तब तक फर्स्ट पर्सन होंगी जब तक मैं बोल रही हूँ। द मोमेंट आई स्टॉप स्पीकिंग एंड यू स्टार्ट टॉकिंग, देन यू बिकम द फर्स्ट पर्सन एंड आई बिकम द सेकेंड पर्सन। तो जब भी कोई पर्सन बोलना स्टार्ट करता है या बोल रहा होता है, वो पर्सन फर्स्ट पर्सन हो जाता है और सुनने वाला पर्सन सेकेंड पर्सन हो जाता है। और बोलने वाला और सुनने वाला मीन्स फर्स्ट और सेकेंड पर्सन जिस किसी के बारे में बात कर रहे होते हैं वो थर्ड पर्सन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी और पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं जो हमारे बीच में नहीं है, तो वो पर्सन कौन सा हो गया? थर्ड पर्सन। उनके लिए हम ही, शी, इट, दे, देम कहकर ही रेफर करते हैं। आई होप you have understood the personal pronoun and their types also. Now the second is relative pronoun. Let us read these sentences given before reading the definition of relative pronoun. Mahi is a friend who is always there for me. There is a man standing who is wearing a red shirt. Now there is a similarity in these two sentences. And what is the similarity here? Who. Who is the similarity in these two sentences? अब who से हम कैसे कह सकते हैं कि relative pronoun है? तो let us read the definition now. A relative pronoun is a pronoun that is used to introduce a relative clause. Relative pronoun वो pronoun होती है जिससे हम relative clause introduce करते हैं। अब ये relative clause क्या है? What is a relative clause? Now let us study this relative clause also. A relative clause is a type of subordinate clause. Relative clause subordinate clause का type होता है। अब ये subordinate clause कौन से होते हैं? These are those clauses which cannot stand on their own. जिनका अपना खुद का मीनिंग नहीं होता। अब हम माही वाला स्टेटमेंट देखते हैं। हमने माही वाला स्टेटमेंट पढ़ा था, माही इज अ फ्रेंड हु इज always there for me. Now let us take the first part. Mahi is a friend. क्या अगर हम इतने पार्ट को अलग से पढ़ें, सिर्फ इतने ही पार्ट को रीड करते हैं, माही इज अ फ्रेंड, तो क्या इसका कंप्लीट मीनिंग निकल रहा है? Yes, it is giving us the complete meaning. माही एक फ्रेंड है, इसका पूरा मीनिंग निकल रहा है, सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट हो रहा है। Now let us read the second part. Who is always there for me? सिर्फ इतना ही पार्ट हम पढ़ेंगे। Who is always there for me? क्या इसका कंप्लीट मीनिंग निकल रहा है? No, we are not getting its complete meaning. Who is always there for me? कौन है मेरे लिए? हम यहाँ पर क्वेश्चन भी नहीं पूछ रहे हैं। अगर हम क्वेश्चन पूछते, who का W कैपिटल होता और लास्ट में फुल स्टॉप की जगह क्वेश्चन मार्क होता, तब भी मीनिंग कंप्लीट हो सकता था। बट वी हैव टू टेक केयर ऑफ पंक्चुएशन ऑल्सो। हु का W स्मॉल है और लास्ट में सिर्फ फुल स्टॉप है, क्वेश्चन मार्क नहीं है, तो इसका मतलब ये सेंटेंस का एक पार्ट है जिसका पूरा मीनिंग कंप्लीट नहीं है। तो जो फर्स्ट पार्ट है, माही इज अ फ्रेंड, ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया, ओके। या फिर इसको हम मेन क्लॉज भी कह सकते हैं। हु इज़ ऑलवेज देयर फॉर मी, ये हमारा एक ऐसा क्लॉज है, एक ऐसा पार्ट है सेंटेंस का जिसका मीनिंग कंप्लीट नहीं हो रहा, तो इट मीन्स इट इज़ अ सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज वो क्लॉज होते हैं जिनका मीनिंग कंप्लीट नहीं होता। सेंटेंस को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट वो जिसका मीनिंग कंप्लीट हो जाए, दूसरा पार्ट जिसका मीनिंग कंप्लीट ना हो। इन अदर वर्ड्स, एक मैंने अपनी कंजंक्शंस की वीडियो में भी आप लोगों को बताया है कि सेंटेंस का वो पार्ट जो किसी कंजंक्शन से स्टार्ट हो रहा है वो हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। हु, दैट, विच, वेरेवर, व्हेनेवर, ये जो भी कंजंक्शन से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स होते हैं ना, वो हमारे सबऑर्डिनेट क्लॉज को बनाते हैं। यहाँ पर हु इज़ अ कंजंक्शन, हु कंजंक्शन है, तो हु से जो स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस का पार्ट, वो क्या हो गया? सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। तो जो रिलेटिव क्लॉज के बारे में हम बात कर रहे थे, अ रिलेटिव क्लॉज इज अ टाइप ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज। यहाँ पर रिलेटिव क्लॉज हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज का टाइप। अब हमने पीछे क्या पढ़ा था?
हमने रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ा था कि रिलेटिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन दैट इज यूज्ड टू इंट्रोड्यूस अ रिलेटिव क्लॉज, जिससे रिलेटिव क्लॉज इंट्रोड्यूस होता है। इंट्रोड्यूस का मतलब स्टार्ट होता है। एक ऐसी प्रोनाउन होती है रिलेटिव प्रोनाउन जिससे हमारा रिलेटिव क्लॉज स्टार्ट होता है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हमारा जो रिलेटिव क्लॉज था वो किससे स्टार्ट हो रहा था? हु से स्टार्ट हो रहा था। तो इट मीन्स हु इज अ रिलेटिव प्रोनाउन। आई नो आई हैव स्पोकन अ लॉट अबाउट इट, मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल्स बता दी हैं, बट दीज डिटेल्स विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग क्लॉजेज ऑल्सो। तो थोड़ा सा भी डाउट नहीं रह जाना चाहिए, दैट्स वाई आई हैव explained everything here. Now examples of relative clauses are whose, which, who, that, wherever, whenever. तो ये हमारे relative clauses होते हैं या फिर relative pronouns भी होते हैं। relative clause के starting introduction इनसे होता है और ये relative pronouns बनाते हैं। Now the next type of pronoun is reflexive pronoun. We have studied personal pronoun, we have studied relative pronoun. Now the third type of pronoun is reflexive pronoun. Let us read these sentences. You might consider yourself lucky in this matter. She has hurt herself intentionally. अब यहाँ पर हम देख रहे हैं हमने एक वर्ड इंट्रोड्यूस करा है योरसेल्फ और हरसेल्फ। यहाँ पर सेल्फ हम अलग से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अब ये योरसेल्फ और हरसेल्फ कैसे डिनोट कर सकते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है? लेट अस स्टडी द डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट दैट रेफर्स टू द सेम पर्सन और थिंग एज द सब्जेक्ट। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एक ऐसा प्रोनाउन होता है जो अपने ऑब्जेक्ट में वही पर्सन को लिखता है जो उसका सब्जेक्ट होता है। इट मीन्स जो सब्जेक्ट होगा ना वही ऑब्जेक्ट भी होगा। लेट अस रीड द एग्जाम्पल्स हेयर, स्टेटमेंट्स वी हैव रिटन हेयर। यू माइट कंसिडर योरसेल्फ लकी इन दिस मैटर। अब यहाँ पर योरसेल्फ ऑब्जेक्ट है, यू हमारा सब्जेक्ट हो गया, माइट मॉडल हो गया, कंसिडर मेन वर्ब हो गई, योरसेल्फ लकी इन दिस मैटर हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब ऑब्जेक्ट में हमने क्या वर्ड यूज करा है? योरसेल्फ। योरसेल्फ किसको डिनोट कर रहा है? अपने सब्जेक्ट को, यू को ही डिनोट कर रहा है। तो योरसेल्फ यहाँ पर यू के बारे में ही बात कर रहा है। तो जब हम ऑब्जेक्ट में दोबारा से सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। इसी तरह नेक्स्ट वाला स्टेटमेंट, शी हैज हर्ट हरसेल्फ इंटेंशनली। शी के लिए ही हमने हरसेल्फ यूज करा है ना, उसने अपने आप को हर्ट करा इंटेंशनली। तो हरसेल्फ इज डिनोटिंग शी, हरसेल्फ शी को ही डिनोट कर रहा है। तो इसलिए हम यहाँ पर हरसेल्फ को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही कंसिडर करेंगे। तो इन शॉर्ट, जब ऑब्जेक्ट लौट घूम फिर कर सब्जेक्ट के बारे में ही बात करता है तो वो जो ऑब्जेक्ट होता है जिसमें सेल्फ लगा हुआ होता है वो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। For example, yourself, herself are reflexive pronouns in these sentences. Now, examples of reflexive pronouns: myself, yourself, herself, himself, itself, themselves, ourselves, yourselves. अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि सेकेंड जो वर्ड है yourself और जो लास्ट वर्ड है yourselves, इन दोनों में कुछ डिफरेंस है। Only last 3 letters in selves are changed. SELVES is written in the last one and in the second one SELF. तो जब yourself में एक पर्सन होगा तब हम yourself बोलेंगे और जब एक से ज़्यादा पर्सन होंगे तब हम उनके लिए yourselves बोलेंगे। So this is the difference between yourself and yourselves. Now let us move ahead to indefinite pronoun. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड ऑल द टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। अगर आपको कोई भी प्रोनाउन समझ में नहीं आती है या आपको कुछ भी डाउट होता है तो डू नॉट हेसिटेट टू राइट इन द कमेंट बॉक्स। आई एम देयर टू आंसर ऑल योर क्वेरीज। एंड इफ यू आर लाइकिंग द एक्सप्लेनेशन, इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट, प्लीज
click on the like button and do subscribe the channel if you have not yet subscribed it, and share it with your friends so that they may also learn something which may help them in their future. So indefinite pronoun पढ़ने के लिए let us read these sentences. Do you need some tea? Can you give me little help? Someone broke the glass. अब यहाँ पर indefinite का मतलब होता है जो definite ना हो, जो कुछ certain ना हो. तो फर्स्ट सेंटेंस में do you need some tea? टी की क्वांटिटी सर्टेन नहीं है. कैन यू गिव मी लिटिल हेल्प? हेल्प की क्वांटिटी सर्टेन नहीं है कि कितनी हेल्प. समवन ब्रोक द ग्लास. किसने ब्रेक किया ग्लास? हमें नहीं पता. वी आर नॉट सर्टेन. वी आर नॉट knowing exactly the person who broke the glass. Now let us read the definition of indefinite pronoun. An indefinite pronoun doesn't specify the person, thing or the quantity referring to. एक indefinite pronoun पर्सन, थिंग या क्वांटिटी को स्पेसिफाई नहीं करता, उसके बारे में वो एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं बताता है. फॉर एग्जाम्पल, सम, लिटिल, समवन आर इंडेफिनिट प्रोनाउंस इन द प्रीवियस सेंटेंसेस. नाउ मोर एग्जाम्पल्स ऑफ इंडेफिनिट प्रोनाउंस आर समवन, मोस्ट, सेवरल, ऑल, नथिंग. अब इंडेफिनिट प्रोनाउंस कहाँ कहाँ यूज हो सकता है? इट रेफर्स टू अ जनरल पर्सन. जैसे हम कहते हैं कोई आया है, तो समवन हैज़ कम. अब कोई आया है, जब तक हम गेट पर जाकर देखेंगे नहीं कि कौन आया है, वी आर नॉट सर्टेन, वी आर नॉट श्योर कि कौन आया है. जब तक हम अंदर बैठकर बोल रहे हैं कि कोई आया है, तब तक हमें नहीं पता, हम सर्टेन नहीं है. तो कोई भी जनरल पर्सन हो सकता है, वो कोई भी पर्सन हो सकता है. लेकिन हाँ, जब हम जाकर देख लेंगे, गेट को खोलेंगे, देन वी कैन से दैट ही हैज़ कम और शी हैज़ कम. किसी स्पेसिफिक पर्सन का हम नेम ले सकते हैं. तो जब तक हमें नहीं पता, वी आर टॉकिंग इन जनरल, हम समवन यूज़ करेंगे. नेक्स्ट, इट रेफर्स टू द अमाउंट. जब हमें क्वांटिटी नहीं पता होती एग्जैक्ट. अगर हम कहते हैं 5 kgs, तो हमें एग्जैक्ट क्वांटिटी पता है. अगर हम कहते हैं 5 ऑरेंजेस, तो हमें क्वांटिटी पता है कि 5 ऑरेंजेस हैं. लेकिन जब हमें क्वांटिटी नहीं पता होती, हमें अमाउंट नहीं पता होता, मोस्ट, सेवरल, फ्यू, लिटिल, तब हम उनके लिए ऐसे ही इंडेफिनिट प्रोनाउंस यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इज इट रेफर्स टू एब्सेंस और टोटलिटी. या तो कोई चीज़ है ही नहीं, या वो हम पूरी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं जो है. जो पूरी चीज़ है उसके लिए हम ऑल बोलेंगे, एवरीवन बोलेंगे, एवरीथिंग बोलेंगे. और जो है ही नहीं उसके लिए नथिंग बोलेंगे, नन बोलेंगे. ओके, तो दीज आर सम अदर एग्जाम्पल्स ऑफ इंडेफिनिट प्रोनाउंस. Now, indefinite pronoun can be used both as the subject and the object. वो subject की जगह भी यूज़ हो सकता है और object की जगह भी यूज़ हो सकता है. For example, everything we did was useless. हर एक काम जो हमने किया, everything, it is an indefinite pronoun. हम specify तो नहीं कर रहे हैं ना कि कौन कौन सा काम किया. हम कह रहे हैं हर एक काम जो हमने किया. We are using totality here. Everything we did was useless. Next is we tried everything. I have intentionally taken the same word here so that you may understand कि एक word subject की जगह भी आ सकता है यहाँ पर, और वही word object की जगह भी आ सकता है. We tried everything. Again I have used totality here कि हमने सब कुछ ट्राई करा, हमने हर एक चीज़ ट्राई करी. तो I hope you have understood the indefinite pronoun also here. Examples of indefinite pronouns are another, anybody, few, none, such, all, less, nobody, everyone. See, I have given a very few pronouns here. The list is very small. We have many different pronouns, indefinite pronouns. The list is big. So, it's just for your understanding point of view. I am giving 5-6 names here. नेक्स्ट इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. अब यहाँ पर नेम से ही पता चल रहा है कि हम किसी का डेमो दे रहे हैं. अब अगर हम किसी चीज़ का डेमो देते हैं तो वो चीज़ हमारे पास होती है या हमसे थोड़ी सी दूरी पर होती है ना. तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड इन द सेम मैनर. दीज आर मैंगोज. हियर मैंगोज आर जस्ट नियर द पर्सन. नेक्स्ट इज दिस इज अ डॉग. डॉग इज अगेन नियर द पर्सन. दैट इज अ चेयर. The chair is away from the person speaking. तो
जो चीज़ हमारे पास होती है उसके लिए हम दिस या दीज यूज़ करते हैं, और जो चीज़ हमसे दूर होती है उसके लिए दैट या दोज यूज़ करते हैं. दिस एंड दैट इज़ यूज्ड फॉर सिंगुलर थिंग एंड दोज एंड दीज आर यूज्ड फॉर प्लूरल थिंग्स. ये हमने बचपन में फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड क्लास में भी पढ़ा होगा. So a demonstrative pronoun is used to point to some specific people or thing near or far away. तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन किसी स्पेसिफिक पीपल या थिंग के लिए यूज़ किया जाता है. वो चीज़ या पर्सन हमारे पास भी हो सकता है और हमसे दूर भी हो सकता है. इट कैन बी यूज्ड आइदर एज अ सब्जेक्ट और एन ऑब्जेक्ट. इसी जैसे हमने इंडेफिनिट प्रोनाउन को सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह यूज़ करा था, इसी तरह यहाँ पर भी सेम वर्ड सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह यूज़ हो सकते हैं. व्हाट इज़ दिस? यहाँ पर दिस हमने किसकी जगह यूज़ करा है? ऑब्जेक्ट की जगह. अब नेक्स्ट सेंटेंस में दिस इज़ अ कैट, हम दिस को सब्जेक्ट की जगह यूज़ कर रहे हैं. तो इट इज़ अगेन करेक्ट दैट वी कैन यूज़ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन either in the place of subject or in the place of an object. So I hope all the types of pronouns we have studied today are clear to you. The rest types of pronouns we will study in the next video. If you have any doubt, please do write in the comment section so that I may answer, I may try to clarify your doubts. I hope you have understood everything. If you have understood, if you have liked the explanation, please click on the like button. Do not forget to subscribe the channel, share it with your friends, and if you have already subscribed, do not forget to press the bell icon given near the subscribe button. Thank you so much for watching. Take care.